हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने नए सेशन में क्लास 12th का पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस फर्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट में हम आपको प्रीवियस ईयर के टॉपिक से पहले इसको कोरिलेट करते हैं कि लास्ट ईयर क्लास 11th वी हैव स्टडीड periodic table. Yes, and in the periodic table are classified into four categories. One is called S block element, another is P block element, next one is D block element, and last one is F block elements. Yes, S block elements, it means generally the last electron enters into the s orbit, and the general electronic configuration is ns122 because one orbital can accommodate only two electrons and both are in opposite spin, and s orbital contains only one orbital, so maximum two electrons are present, so the configuration varies from 1 to 2. In the case of p block element, it's a very important and a very interesting topic because all factors are related with reasons, and the p block elements means lots of elements are present in the nature, and according to the nature they are classified into groups, periods, according to the law. Yes, तो कुछ लॉ के अकॉर्डिंगली ही हमने इनको ग्रुप्स पीरियड्स में डिवाइड किया, और ये ग्रुप्स पीरियड्स में डिवाइड करने के बाद जो एक टेबल फॉर्म होती है जिसे हम जनरली पीरियोडिक टेबल कहते हैं, बिकॉज इस पीरियोडिक टेबल की क्वालिटी है, ये एक ऐसा फ्लो चार्ट है जिसमें ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर डिस्कस्ड इन अ टेबल are gradually changed step by step, and these periodic table in the modern form they are classified into four categories, and p block elements are situated in the periodic table at the right side of the table, and in this block they are divided into six groups. Why these are divided into six groups? Because p orbital can contain three orbitals and each orbital contains two electrons, so the maximum electrons in the p orbits are 6, और इस 6 का मतलब हुआ कि एटलीस्ट 6 ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज अब हमारा कन्फिग्रेशन NS2 NP1 to 6 वेरी करेगा. क्लियर? तो ये हमने आपके सामने जो ड्रॉ करके रखा है एक स्केच, दीज आर द 6 ग्रुप्स. These are called P blocks. Clear? And group 13, group 14, group 15, group 16, group 17 and group 18. It means in general हमारे पास पॉइंट आया कि group 13 to 18 are called P block elements. Clear? In the 13 group, elements are boron, aluminium, gallium, indium, and thallium. In group 14, carbon, silicon, germanium, tin, and lead. Group 15, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, iodine and acetine. And last group is helium, out of the way, and neon, argon, krypton, xenon and radon. एंड आई थिंक ये आपको पांचों ग्रुप छः ग्रुप समझ में आ गए होंगे. एंड फर्स्ट टू ग्रुप्स ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास 11, दैट मीन्स
Group 13 is called boron family because the first member of this group is boron. Group 14 is called carbon family because the first member of this compound is carbon. Group 15 is called nitrogen family and it is also called pincogens. Pincogens. Similarly, oxygen family is called chalcogens. Similarly, group 17 is called halogens. And group 18, inert gases. Inert gases. Clear? Up one by one. Boron, atomic number 5, carbon 6, 7, 8, 9, 10. So first of all, we discuss the electronic configuration of each element because तभी आपको ये जो 1 to 6 का कंसेप्ट है वो क्लियर हो कि अगर हमने 5 का क्लासिफिकेशन नोट डाउन किया तो 1s2, 2s2, 2p1, 2 to 4 or 1 5. Move to the group 14, 1s2, 2s2 and 2p2. Next one is 2p3. Next one is 2p4. Next one is 2p5 and last one is 2p6. According to the classification, when we move from left to right, atomic number increases or atomic number increases, so the number of electrons are distribution in the p orbit is according to the Hund's rule. Each and every orbital contains one electron at a time and all have same spin. So in case of boron, only one electron is there. When we move from group 14, 2 is there. Group 15, 3 is present. So 1, 2, 3. When 3 electrons are distributed in the 3 orbit, then half field structure is obtained. And class 11th already discussed कि two major points are here कि half filled and full filled structure are more stable than other configuration. So group number 15 and group number 18, because whenever we reach the group 18, so the number of electrons, the p orbits are 6. So 6 are structured like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is it clear? तो एक्सेप्शनली जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं वो या तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द फुल फील्ड स्ट्रक्चर इन ग्रुप 18 and group 15. इन दोनों ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज, जितनी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो एक्सेप्शनली थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स. क्यों हो जाएगी? बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्ट्रक्चर. बाकी सब में अभी हमारा इनकम्प्लीट वेरिएशन रहता है. तो एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट वेरिएशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, these two are more stable. Is it clear all of you? चलिए अब हम आपको मूव करते हैं कि इन नाइट्रोजन, अभी हम जनरल स्टडी में आपको सारे ग्रुप के कंसेप्ट बताएंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन हम इन प्रॉपर्टीज को कंसीडर करेंगे. क्लियर? तो इस NS2, NP3, NP4, NP5, NP6 इस कन्फिग्रेशन के बेस पे ही बेटा जब हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को, यानी पहली प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने जनरली ऑब्जर्व कर ली, वो क्या थी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. एंड द मोस्ट
इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, या आई थिंक कि मोस्ट डिफरेंट फिगर्स कि ईच ईच एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप, देखिए मैंने आपको पूरे ग्रुप की बात करी, ईच एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ every group always shows anomalous behavior. What do you mean by anomalous behavior? क्या इसका मतलब है? Anomalous behavior का मतलब है बेटा कि this element shows some different characteristics with respective their groups. कुछ डिफरेंट करेगा. ऐसा क्यों है कि केवल हमने फर्स्ट ग्रुप को डिस्कस किया. इफ we write the structure of the nitrogen, then 2p3. When we move from next group, then 2p4, 2p5 and 2p6. And in the second shell, d orbital is absent. It means accommodation limited. जब ये accommodation limited हो जाएगी, इट मीन्स कि यहाँ पर जितनी भी करेक्टर है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो केवल और केवल ओनली एंड ओनली इस 4 ऑर्बिटल्स पे ही कन्फाइंड हो जाएंगी. इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है. तो अगर हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब इसका साइज़ सबसे स्मॉल होगा, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो नियॉन हो. एंड इन केस ऑफ p ऑर्बिटल, 3 orbitals are there, px, py and pz. What do you mean by orbital? Orbital is the space, the 3-dimensional space where the maximum probability of finding the electron. So I am telling 3D structure. 3D structure means x-axis, y-axis and z-axis में discuss किया गया figure. Clear? p-axis की overlapping से जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कैसे पॉसिबल है? 2 ही पॉसिबिलिटी है बेटा, बिकॉज द शेप ऑफ द p orbital is dumbbell. You all know, like this one. So if the structure is this one, then 2 different possibilities are there. Maybe head to head overlapping and maybe lateral overlapping. Is it clear? If head to head overlapping is there, then the sigma bond is formed, and when lateral overlapping is formed, it means 2-sided overlapping, then pi bond is formed. So only 2 possible figure are there. One is sigma bond and another is pi bond. And in the convention, pz always overlap at the head overlapping, and pz forms sigma bond, and py and pz, px and py, px and py forms pi bonds. Is it clear? So in case of nitrogen, oxygen, fluorine and neon, if only p orbital is present, it means a specific character is there कि it always overlap p pi bonding. Because d orbital is absent, so no p pi d pi is possible. है ही नहीं हमारे पास d. जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, उसको हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे इन एलिमेंट्स के लिए. बट जैसे ही व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन इफ द 15 atomic number, so you write the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. काउंट करिए 6 to 8 to 10 to 12 3 15, and 3s, 3p and 3d orbital also present. Is it clear? So जैसे ही हम किसी भी ग्रुप में, अब अगर हम फॉस्फोरस को देखें, सल्फर देखें, क्लोरीन देखें या आर्गन देखें, तो यहाँ सब में अपने पास 3D
ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, और जब 3D ऑर्बिटल अपने पास प्रेजेंट होगा इट मीन्स एकोमोडेशन हमारे पास फ्री हो जाएगी। एकोमोडेशन फ्री हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हमारा पॉसिबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास रिएक्टिविटी के लिए या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? बट यहाँ पर इन 4 ऑर्बिटल्स के अलावा कहीं भी कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इट मीन्स कि अगर ये पी पाई बॉन्डिंग को फॉर्म करेगा तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन all are capable to form multiple bond also character and are in gaseous form। आप देख लीजिए, और मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से ऑल आर डायटॉमिक इन नेचर, लाइक नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, फ्लोरीन F2, और नियॉन सिंगल एटम में मोनोटॉमिक कंडीशन में ही रहेगा बिकॉज इट कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल। रेस्ट ऑफ द अदर इनर्ट को तो बेटा हम वैसे भी कंसीडर नहीं कर पाएंगे बाकी प्रॉपर्टीज में, बिकॉज इनर्ट का मतलब ही हो गया इनएक्टिव, जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। दे आर मोस्टली इनएक्टिव बिकॉज दे कांट या दे डू नॉट रिक्वायर टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन ईजिली। इज इट क्लियर? सो इसको हम प्रॉपर बाकी की रेस्ट प्रॉपर्टीज में भी कंसीडर नहीं कर पाएंगे। सो नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 फॉर्म, ऑक्सीजन O2 फॉर्म, फ्लोरीन F2 फॉर्म, ऑल आर प्रेजेंट इन diatomic in nature। Clear? जबकि रेस्ट ऑफ द करेक्टर may or may not be changed because they are capable to forming multiple oxidation state। Clear? What do you mean by oxidation state? Oxidation states are the state in which another atoms are combines to the element in the variant form। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर आपको यहाँ तक का जनरल करेक्टर कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेरिएशन क्या था अपना, इनका सिंपल करेक्टर में एनामोलस बिहेवियर में हमारे पास पहला करेक्टर आ गया कि जितने पहले एलिमेंट होंगे वो सब स्मॉल साइज होंगे। दूसरा अपना करेक्टर आ गया कि इनमें डी ऑर्बिटल का एकोमोडेशन पॉसिबल नहीं होगा। एंड थर्ड वन इज इट ऑलवेज फॉर्म्स पी पाई बॉन्डिंग। एंड लास्ट वन करेक्टर इज इट कंटेन्स या इट एग्जिस्ट एज अ डायटॉमिक इन नेचर। क्लियर? अब नेक्स्ट जनरल करेक्टर अगर हम मूव आउट करके देखें बेटा, तो इस सीरीज में इस पी ब्लॉक के कंपाउंड्स में स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? ग्रुप 15 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? अगर हम एक जनरल ग्रुप 15 के करेक्टर की तरफ ही मूव करें तो ग्रुप 15, अब हम पर्टिकुलर ग्रुप 15 के करेक्टर की ही डिस्कशन को लेते हैं ताकि वन बाय वन आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाए, अदरवाइज मिक्स हो जाने से फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और जितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपने डिस्कस करी थी पीरियोडिक टेबल में? वन, सबसे पहले एलिमेंट में हम क्या डिस्कस करते हैं? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर हम क्या डिस्कस करते हैं? उसकी एटॉमिक या एनिक, उसकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिस्कस करते हैं। देन अनदर हम क्या डिस्कस करते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल डिस्कस करते हैं। देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करते हैं। देन वैलेंसी करते हैं। देन ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक? तो जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने पीरियोडिक टेबल की क्लास 11th में टर्मिनोलॉजी में पढ़ी थी, वन बाय वन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेकेंड वन इज आयोनाइजेशन, एनर्जी या एंथैल्पी, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, नेक्स्ट
negativity and melting point, boiling point, इन सब के वेरिएशंस की बात करी थी हमने। और लास्ट में हम इनमें बहुत सिंपल वर्ड्स में कैरेक्टराइज करते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड मेटलॉइड्स। एक क्लासिफिकेशन जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा 11th में, तब इस बेस पे भी हमने करेक्टर्स के अकॉर्डिंगली पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की कोशिश करी थी। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आल्सो डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज इन ग्रुप 15. So again you write the group 15 elements: nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Yes. General electronic configuration: atomic number of nitrogen is 7, phosphorus is 15, next 33, next 51 and last one is 83. आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखे जाते हैं, कहाँ तक आप याद करोगे? अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में जब पीरियोडिक टेबल का टॉपिक स्टार्ट किया था, उस पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, देन 8, 8, 18, 18 एंड 32। इसीलिए फर्स्ट पीरियड को हम कहते थे शॉर्ट पीरियड, इन दोनों को हम कहते थे लॉन्ग पीरियड, इनको हम कहते थे लॉन्गेस्ट पीरियड, और लास्ट वाले को हम कहते थे इनकम्प्लीट, बिकॉज अभी हमारे एलिमेंट्स की स्टडी चल रही थी। हमने आपको इतनी जल्दी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी कंटेंट का कैसे लिख के दिखाया, क्योंकि जब भी आपने वेरिएशन पढ़ा, ठीक है, उस वेरिएशन में हमेशा उतने ही कंटेंट को ऐड करते चले जाइए। अगर आपने 7 पहले का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना लिखा बेटा? 7 में अगर हमने 8 को कनेक्ट किया तो कितना बना? करिए, 7 + 8 15, ठीक। 15 में फिर आपने 8 जोड़े, है ना, तो 15 में आपने 15 में 18 जोड़ा बेटा। ये ऊपर वाला था ना पहला पीरियड, इसको आप यहाँ से कनेक्ट करो। 7 को आपने 8 से कनेक्ट किया, 15 में आपने 18 कनेक्ट किया, 33, 15 + 18 देन 33 में फिर आपने 18 कनेक्ट किया, कितना हुआ? 51, और 51 में आपने 32 कनेक्ट किया तो कितना हुआ? 83। तो आप किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इजीली लिख सकते हैं। अब अगर हम आपसे कहते कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को आप लिख के दिखाइए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो ग्रुप 16 में हमारे पास एलिमेंट्स क्या थे? वो थे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था अपने पास बेटा? 8। आइए अपने आप करके देखिए। फिर हमने क्या लिखा यहाँ पर? 8, 18, 18 और 32। तो 8 में 8 को हमने कनेक्ट किया तो कितना आया अपने पास? 16। 16 में हमने 18 कनेक्ट किया, 16 + 18 कितना हो गया बेटा? 34। यस, 34 में हमने 32 को कनेक्ट किया, देन 52, एक 18 छोड़ दिया आपने यहाँ पे, इसको इस 18 से कनेक्ट करोगे, इस 18 से किया तो 34, 34 को 18 से किया तो 52, 52 को 32 से किया तो 84, 52 + 32, तो 2 और 2 4, 8। डन। तो आपसे जब भी कभी कोई भी
एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए, आप फट से पहला वाला बस याद रखिए, उसके बाद नंबर ऑफ़ पीरियड्स में कितने कितने का डिफरेंस एलिमेंट्स का है उसको साइड में पेंसिल से लिखा और ऐड करते चले गए, तो हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेकअप कर सकते हैं। डन। चलिए, ग्रुप 15 की बात हमने कही कि आज भी हम आपको कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लें, जैसे कि सबसे पहले तो कि ग्रुप 15 में जो कंटेंट है उनकी अक्रेंस क्या है, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो जनरली हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस को ही देखते हैं, क्योंकि यही हम एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं। तो बाकी सारे जो हैं, ये ऊपर के दो नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटेलॉइड्स, एंड बिस्मथ इज मेटल। तो सबके चूंकि करेक्टर अलग अलग हैं, टू करके कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन जो है वो जनरली नाइट्रेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और नाइट्रेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होने के कारण ये दो कंडीशन में हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है। एक जिसे हम कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर, और दूसरा जिसे हम कहते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। एंड द चिली सॉल्ट पीटर इज NaNO3. Sodium nitrate is called chile, CHILE, chili saltpeter. And KNO3 is called Indian saltpeter. Is it clear? ये दोनों नाइट्रेट्स फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और फॉस्फोरस हमारे पास जनरली जो है वो एक एपेटाइट फैमिली है, उसमें कनेक्टेड होती है। एपेटाइट फैमिली, क्लियर। और इस एपेटाइट फैमिली का फॉर्मूला हमें लर्न करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन कंटेंट। इसका फॉर्मूला है Ca3PO4 का होल 6 डॉट CaX2। दिस इज द फैमिली फॉर्मूला, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सचेंज करते जाओगे करेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी। तो फॉस्फोरस जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एपेटाइट फैमिली एंड नाइट्रोजन अकर्स इन द नाइट्रेट फैमिली। और इसी में इसका एक करेक्टर था कि अगर हमने इसको पिनकोजेंस कहा था स्टार्टिंग में, तो वाई दीज आर कॉल्ड पिनकोजेंस? बिकॉज केमिस्ट्री ऑलवेज या साइंस ऑलवेज रिक्वायर्ड साइंटिफिक स्किल, हाउ, वाई एंड व्हेन। सो इफ वी से these elements are called pincogens, so something is reason ना। ऐसे तो नहीं हमने हवा में उठा के कोई बात कह दी, बिकॉज बेटा जो पिनकोजेंस वर्ड था इट्स अ ग्रीक लैटर। ये एक ग्रीक लैटर पिन कमिंग्स से लिया गया था, पिन कमिंग्स। एंड पिन कमिंग्स का मीन्स था सफोकेशन। इट मीन्स इस ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स के जितने भी हम कंपाउंड्स मेकअप करेंगे, ऑल हैव सफोकेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सो जनरली दीज आर कॉल्ड पिनकोजेंस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसका इलेक्ट्रॉनिक, हमने अक्रेंस और पिनकोजेंस के करेक्टर को शॉर्ट आउट किया कि वाई दीज आर कॉल्ड पिनकोजेंस एंड वाई दीज आर कॉल्ड चिली सॉल्टपीटर, इंडियन सॉल्टपीटर और एपेटाइट फैमिली। नेक्स्ट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, इसको हमने अगर क्लासिफाई किया तो 1s2, 2s2, 2p3। सो इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 15 इज ns2 np3। फर्स्ट करेक्टर इज क्लियर। Second one is ionization enthalpy. What do you mean by ionization enthalpy? Ionization enthalpy means कि outermost ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। बट इन द स्टार्टिंग वीडियो वी डिस्कस कि इट शोज हाफ फील्ड स्ट्रक्चर, एंड हाफ फील्ड स्ट्रक्चर मीन्स हुआ कि इट्स अ स्टेबल स्ट्रक्चर। सो ग्रुप 15 एलिमेंट have high ionization energy than group 14 and group 16। अपने 16 वाले से भी ज़्यादा होगी और 14 वाले से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आगे और पीछे वाले जो हैं वो स्टेबल स्ट्रक्चर को शो नहीं कर रहे हैं। ये तो हमने कंपैरिजन किया आस और पास, यानी अगल और बगल, यानी ग्रुप 14 और ग्रुप 16 के एलिमेंट से। अगर हम अपने ही ग्रुप में मूव डाउन करें तो नाइट्रोजन इज द स्मॉलेस्ट इन साइज,
Yes, smallest size means the force of attractions are high, strongly attracted by the nucleus. So they have less tendency to lose electron. So ionization enthalpy of the element of the nitrogen family are much higher, and it decreases down the group, because due to the, when we move from top to bottom, number of shells are increases, number of shells increases, and force of attraction decreases. Clear? And whenever the force of attraction decreases, so the minimum energies are required to lose the last electron from the isolated gaseous atom. So when we move from left to top to bottom, ionization enthalpy decreases. Clear? Next आता है very important figure, oxidation state. What do you mean by oxidation state and how it is calculated? ये क्लास 11 जब आपने रेडॉक्स चैप्टर की स्टडी करी थी, वहाँ पर आपको इसका डिटेल स्टडी एक्सप्लेन किया गया था. यस, इन दिस केस outermost orbit only 3 electrons. Is it clear? And the stable structure is electronic configuration outermost orbit में 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. तो ये अगर हमने देखा तो 2s and 2p. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 3 4 5. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट? 3. अब इस 5 में 3 हमको और ऐड हो जाएं, तब हमारा स्ट्रक्चर ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा. या जब हमने नीचे इसके मूव किया 3s2 3p6, इट मीन्स inner core 2s2 2p6 is stable when these 5 electrons are loses. Possibility is there. I'm not telling कि always ये lose कर रहा है, but characteristic is show कि if they gain, या तो ये किसी से ले गेन कर ले, या ये अपने 5 लूज कर दे, तब भी तो हमारी इनर कोर जो है वो स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 और 2 8 हो जाएंगे. पॉसिबिलिटी कब होगी? जब ये लेगा या जब ये देगा, जब ये लॉस करेगा या जब ये गेन करेगा. ये दोनों काम करेगा ग्रुप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जब ग्रुप इज स्मॉल देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर वेरी हाई, और जब हाई हो जाएगा बेटा, तब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाएगा. इज इट क्लियर? तो अब अगर ये लूज नहीं कर पाएगा अपने 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये किसी से लेगा. लेना बोरोअर हमेशा कैसा होता है? निगेटिव साइन से. सो नाइट्रोजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? -3. ये आसानी से किसी से लेगा. क्लियर? बट when we move top to bottom, number of shells increases, size increases, force of attraction between nucleus and the outermost orbit decreases. अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा डिक्रीज हो जाएगा, तब क्या होगा? तब ये दोनों पॉसिबिलिटी कर सकता था. तब ये -3 भी देता, +3 भी हो जाता, और +5 को भी शो कर सकता था. इज इट क्लियर? लेकिन नाइट्रोजन के केस में only and only -3 he is dominant, because the d orbitals are absent, so no expands character is there. Is it clear? हमारे पास 2 तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कशन का पॉइंट आ गया कि मिनिमम हमने नाइट्रोजन का कंसीडर किया कि -3 होगा, बट सम एक्सेप्शंस आर ऑल्सो प्रेजेंट. एक्सेप्शन नहीं, क्योंकि एलिमेंट्स के अंदर एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है, तो वो कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रिपेयर करेगा, लाइक हाइड्रोजीन. एंड इन दिस केस हाइड्रोजीन में ऑक्सीडेशन स्टेट
नाइट्रोजन की -2 आएगी। इज इट क्लियर? और एक अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड और देख लें तो NH2OH, इसमें नाइट्रोजन की -1 आएगी। क्लियर? तो इट मीन्स नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अपने पास -1 भी प्रेजेंट है, -2 भी प्रेजेंट है, -3 भी प्रेजेंट है, बट द कॉमन ऑक्सीडेशन इज -3। -2 और -1 तो एक स्पेसिफिक कंपाउंड्स में डिस्कस किया गया फैक्टर है, डिटेल में नहीं। क्लियर? तो अगर इसकी 3 है तो इसका मतलब ये केवल और केवल ओनली एंड ओनली हैलोजेंस के साथ ट्राई हैलाइड्स ही फॉर्म करने में पॉसिबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट करेक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड रेस्ट ऑफ द कंटेंट दोनों शो करेंगे बेटा, +3 +5। एक और -3 तो रेयर हो जाएगी, क्योंकि अब जब दूर हो जाएगा तो वो आसानी से लीव कर सकता है, और लीव कर सकता है तो हम पॉजिटिव करेक्टर से शो करते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। इसका मतलब ग्रुप 15 के पास क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड स्मॉलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन, ग्रुप 15s आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्लियर? बट when we move down the group, due to the corresponding increasing in atomic radii, its property regularly decreases. Clear? नेक्स्ट हमारा आएगा बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये थोड़ा सा अच्छा करेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वेरिएशंस है, वो एक स्मूथली करेक्टर में इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के करेक्टर को देखें तो मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, नाइट्रोजन देन फॉस्फोरस देन आर्सेनिक, यहाँ तक ये मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा एंड देन डिक्रीज Sp एंड Bi। क्लियर? ये मेल्टिंग पॉइंट। बट बॉइलिंग पॉइंट का करेक्टर क्या कहता है कि ये increases regularly when we move from top to bottom। क्लियर? और इसका एक्सप्लेनेशन, बेस्ट एक्सप्लेनेशन कि वाई दीज करेक्टर्स या वाई मेल्टिंग पॉइंट शोज इरेगुलर करेक्टर, जनरल टर्म दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर? तो व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट? क्या करेक्टर है इनर्ट पेयर इफेक्ट जिसमें हम ये कह देते हैं, क्योंकि जब हम इस ग्रुप 15 को देखें बेटा तो सेकेंड पीरियड के बाद बीच में हमारे पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इन 10 इलेक्ट्रॉनों की वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में एक स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने लगता है, जिसे मैं आपको अगली प्रॉपर्टीज़ के साथ जब डिटेल दूंगी तो नेक्स्ट वीडियो में और इसको एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगी कि कैसे ये शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि स्क्रीन यानी शील्ड एक कवर बना देता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा इनर कोर में फिल होने लगेगा, जबकि पहले हमने इसको 4s में कंप्लीट करा था। अब ये 4s वाला स्टार्टिंग में तो इसके साथ बहुत कनेक्टिवली स्ट्रांगली अटैच था, बट जैसे जैसे ड्यूरेशन इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनर कोर में जब प्रेजेंट होने लगते हैं तब ये आउटर कोर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, और जब रिपेल करेंगे तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक ये जनरल पी ब्लॉक करेक्टर कि कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कैसे भी हम किसी भी एलिमेंट को ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक के साथ। पहले आप इसकी जनरल स्टडी को समझिए एंड देन वी स्टार्ट वन बाय वन कंपाउंड्स और द रिएक्टिविटी। दीज आर द फिजिकल करेक्टर्स ऑफ द ग्रुप 15 एंड नेक्स्ट वी डिस्कस द केमिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ द
group 15. Clear?